तो एस्ट्रोनॉमिकल का उसका लार्ज अपर्चर क्यों होना चाहिए? क्योंकि ज्यादा लाइट मैक्सिमम रेंज आ जाएगी, है ना? क्योंकि दूर से रेज आ रही है स्कैटर होगी, ठीक है? जैसे रेन गॉज है, रेन गॉज का जो मुंह होगा वो क्या होगा? पतला। इस तरह की बोतल जो होती है बड़ी वाली, इस तरह के रख दें, पानी खूब इकट्ठा हो जाएगा, या टब रखने से इकट्ठा जल्दी होगा, ठीक है ना? तो सेम चीज यहाँ पर है। नंबर 33, फर्स्ट ए पार्ट, a giant refracting telescope at an observatory has an objective length of focal length 15 meter. If an eyepiece of focal length 1 centimeter is used, what is the angular magnification of the telescope in normal adjustment? B. If this telescope is used to view the moon, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective lens? The diameter of the moon is 3.48 into 10 raised to power 6 meter, and the radius of the lunar orbit is 3.8 into 10 raised to power 8 meter. First part A, giant refracting telescope at an observatory has an objective length of focal length 15 meter. FO equal to 15 meter. If an eyepiece of focal length 1 centimeter, FE is 1 centimeter, is used, what is the angular magnification of the telescope in normal adjustment? So normal adjustment, the magnification is FO by FE because the image is formed at infinity. So that will be equals to 15 divided by 1 centimeter, that means 1 into 10 raised to power minus 2 meter. So 1 into 10 raised to power minus 2, so that comes to be 1500. So the magnification is 1500. एक बार फिर से देखेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है 15 मीटर और आई पीस का है 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, और इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, दैट मीन्स नॉर्मल एडजस्टमेंट. So magnification in that case is FO by FE. So this is 15 by 10 to the power minus 2, that is 1500. Now the B part. B part, in this telescope, if this telescope is used to view the moon, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective lens? The diameter of the moon is, so here diameter of the moon is 3.48 into 10 to the power 6 meter, and the radius of the lunar orbit is 3.8, and radius of the it is 3.8 into 10 to the power 8 meter. जो मून का ऑर्बिट है उसका रेडियस है 3.8. तो if this is the objective and at the optical center the angle subtended by the moon, so this will be the dm, this angle is alpha, and suppose this is the image formed here, so this will be the diameter of the image di, and the image will be formed at focus, that is this length will be FO, and this is the radius. So this time this angle is alpha, and if I say this angle is beta, although this will be same, alpha is equal to beta, here alpha is equal to beta because they are vertically opposite angles. तो ये मून है जो कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, तो लूनर ऑर्बिट के बराबर, और यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी, क्योंकि इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर. तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस से इसके फोकस पे इमेज बनेगी, और दैट विल बी द डायमीटर ऑफ द इमेज विल बी डी आई सपोज. सो ये एंगल अगर बीटा सबटेंड कर रहा है, ये एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है, तो ये दोनों ही एंगल बराबर हैं. तो हमें पता है यहाँ पर tan alpha equals to tan beta. So tan alpha will be equal to dm upon r, which will be equal to di upon fo. इसका मीनिंग मतलब है कि dm की वैल्यू कितनी है? दैट इज 3.48 into 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है?
3.8 into 10 to the power 8 equals to di, and upon FO is 15. अब यहाँ से पावर 8 है, ये 6 है, तो -2 रह जाएगा. दिस विल बी 3.48 into 15 into 10 to the power -2 divided by 3.8, that will be di. अब यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो दैट कम्स टू बी 5220. 15 8 is 120, 0, 15 4 is 60, and 12 72, remaining 7, and 15 3 is 45, and 7 52, and the decimal is 2 place and -2, so we can put it here and into 10 to the power -2 divided by 3.8. So this is the di. Now we can have it 522 divided by 38 into 10 to the power -2, and that comes to be 13.74. It is 13.74 into 10 to the power -2. So this is the diameter of the image. एक बार फिर से देख लीजिए कि ये मून है जिसका डायमीटर dm है, और ये ऑप्टिकल सेंटर पे, ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर पर ये जो एंगल बनाएगा दैट इज सपोज अल्फा, और इसकी जो इमेज बन रही है एट द फोकस दैट इज द ये, और जिसका डायमीटर कितना है di, और ये डिस्टेंस क्या होगी fo. दिस डिस्टेंस इज द रेडियस. सो हियर द एंगल अल्फा एंड बीटा इक्वल बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट. सो वी कैन हैव 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 बीटा. Substituting the value of 10 alpha, that is dm upon r, and for beta it will be di upon fo. So the value of dm is given 3.48 into the power 6, and the r is given as 3.8 into the power 8, which is equal to di upon 15. fo is given 15. 15 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसकी पावर जो है -2 कर दीजिए ऊपर, तो 3.48 into 15 into 10 to the power -2 divided by बचेगा 3.8. So di will be good. After multiplication of this 15 to this, we will get 52.20 into 10 to the power -2 divided by 3.8. इसका डेसिमल अगर हटाते हैं तो 522 divided by 38, जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है 13.74 into 10 to the power -2. So this is the diameter of the image formed by this objective lens. Or part second, a compound microscope consists of an objective lens of focal length 2 cm and an eyepiece of focal length 6.25 cm separated by a distance of 15 cm. How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image at A part, the least distance of distinct vision, that is 25 cm, and B part, infinity. What is the magnifying power of the microscope in each case? Now 33 or part 2 or part. A compound microscope consists of an objective lens of focal length 2 cm, and the eyepiece of focal length 6.25 cm. They separated by a distance of 15 cm. So this is equal to 15 cm. Length is 15 cm. How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image at least distance? So distance VE will be equal to D. So we have to find UE. Then after finding UE, you can find out the VO, and then U ultimately you have to find this. So here, first of all, I apply this
1 by FE equals to 1 by VE minus 1 by UE. FE is 6.25, so 1 upon 6.25 my equals to 1 upon VE. We have to calculate. Now that V is given to you 25 centimeters, so that will be minus and minus 1 by UE. So 1 by UE will be equals to minus 1 by 25 and minus 1 by 6.25. So taking LCM 25, so it is come minus 4 and here it is minus 1 and here it is minus 4. So that will be minus 5 by 25. So UE equals to minus 5 centimeter. 1 by यहाँ देख लीजिए ये 1 by FE इक्वल टू 1 by VE माइनस 1 by UE लेंस फॉर्मूला है. FE की वैल्यू दे रखी है 6.25, वो मैंने डाल दिया. क्योंकि इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो दैट इज D इज इक्वल टू माइनस 25 हियर, सो इट विल बी माइनस 1 by 25. V की वैल्यू 25 हो गई और माइनस 1 by U. तो 1 by UE इक्वल्स टू इधर आने से 1 by माइनस 125 और ये भी माइनस हो जाएगा 1 by 6.25. इसका एलसीएम लेंगे हम 25, तो इसका 4 टाइम्स है ये, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा और यहाँ माइनस हो जाएगा 4, तो ये माइनस 5 by 25 दैट इज इक्वल टू 1 by 5. सो UE इक्वल्स टू माइनस 5. अब हमें पता है कि L इक्वल्स टू क्या होता है, VO प्लस UE. सो इट इज 15 equals to VO we have to find plus UE is 5, so VO equals to 10 centimeter. अब VO निकल जाएगा तो उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, UO निकाल सकते हैं. तो 1 by FO equals to 1 by VO minus 1 by UO. So 1 by FO is 1 by 2 equals to 1 by 10 minus 1 by UO. So here 1 by UO equals to 1 by 10 minus 1 by 2. The LCM will come 10 and it is 1 minus 5. So that is minus 4 by 10. That is equals to minus 2 by 5. So UO equals to 5 by 2 minus, that is minus 2.5 centimeter. फिर से देखें तो यानी वो कहता है where is to be placed. So it must be placed at a distance of distance of 2.5 centimeter from the objective. इसको कैसे निकालेंगे, हमने UE निकाल दिया था, उसके बाद हमें पता है कि जो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप का ट्यूब है दैट इज VO प्लस UE. तो 15 इक्वल्स टू VO प्लस 5, सो VO कम्स टू बी 10 सेंटीमीटर. फिर लेंस फॉर्मूला लगा दिया ऑब्जेक्टिव के लिए, तो 1 by FO इज इक्वल टू 1 by VO माइनस 1 by UO. FO की वैल्यू है 2, 1 by 2 इक्वल टू VO की वैल्यू जस्ट कैलकुलेट की है 1 by 10 माइनस 1 by UO. तो इस 1 by UO को इधर ले आए, 1 by 2 को उधर ले गए, 1 by 10 माइनस 1 by 2, एलसीएम हो गया 10, ये हो गया 1 माइनस 5, तो दैट इज माइनस 4 by 10, दैट इज माइनस 2 by 5. तो इसको पलट देंगे तो U इक्वल्स माइनस 5 by 2, दैट इज माइनस 2.5 सेंटीमीटर. So B part, the image is formed at infinity. That means VE equals to infinity. So again applying the lens formula, 1 by FE equals to 1 by VE minus 1 by UE. So that means 1 by 6.25 equals to 1 by infinity minus 1 by UE. So this will become 0, that will become 1 by minus 1 by UE. So UE equals to minus 6.25 centimeter and L equals to VO plus UE. So that is 15 equals to 6. This VO plus 6.25. So VO equals to 15 minus 6.25, that is 8.75 centimeter. So you have to find UO. एक बार फिर से देखेंगे,
FO दिया हुआ है, FE दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द ट्यूब दिया हुआ है, और VE हमें दिया हुआ है सेकंड पार्ट में कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो V इज इन्फिनिटी। UO हमें निकालना है, तो VO निकालने के बाद हम UO निकालेंगे, यानी VO हमें निकालना है और फिर UO निकालेंगे। तो लेंस फॉर्मूला लगाया आई लेंस के लिए 1/आई पीस 1/FE = 1/VE माइनस 1/UE 1/6.25 फोकल लेंथ दिया हुआ है, VE दिया है इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी माइनस 1/, ये जीरो हो जाएगा तो बचेगा माइनस 1/UE, तो UE विल कम्स माइनस 6.25 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ का फॉर्मूला लगा दिया L = VO + UE, तो 15 = VO + 6.25, यहाँ से हमें VO मिलता है 15 - 6.25 दैट इज 8.75 सेंटीमीटर। अब हम इसको फिर दोबारा लगा देते हैं ऑब्जेक्ट लेंस फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए, तो 1/FO = 1/VO माइनस 1/UO। 1/FO is 2 equals to 1/VO, we have to find 1/VO is VO is obtained, VO मालूम है, तो that is 8.75 माइनस 1/UO हमें निकालना है, 8.75, then 1/UO will be equals to 1/8.75 माइनस 1/2, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम 17.5, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 and 15 and 2 8 जा 16 and 17, so 17.5, so here will be 2 and here will be minus 8.75. now 1/UO equals to, इसका डिफरेंस करेंगे तो दिस विल कम माइनस 6.75 डिवाइडेड बाय 17.5, सो U is equal to 17.5 divided by 6.75 negative, and that comes to be 2.59 सेंटीमीटर, 2.59 सेंटीमीटर आता है ये। इसको फिर से देख लीजिए, यहाँ तक हमने निकाला है, VO निकल गया था हमारा 8.75। अब हमने लेंस फॉर्मूला लगा दिया ऑब्जेक्टिव के लिए, 1/FO = 1/VO माइनस 1/UO, तो FO की वैल्यू है 2, तो 1/2 इक्वल टू VO की वैल्यू कैलकुलेट की हमने जस्ट 8.75 माइनस UO हमें निकालना है 1/UO, तो 1/UO इधर आ जाएगा, तो दैट विल बी 1/8.75 माइनस 1/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम लिया तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.5 आएगा, और यहाँ 2 आएगा और यहाँ 8.75, तो 2 - 8.75 विल बी माइनस 6.75 डिवाइडेड बाय 17.5 दैट इज इक्वल टू 1/UO। इसको पलट देंगे तो UO विल बी इक्वल टू माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 6.75, और इसको डिवाइड करके अगर आप निकालेंगे वैल्यू तो यू विल गेट माइनस 2.59 सेंटीमीटर। नाउ कहते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इन ईच केस। सो एक एक केस में मैग्नीफाइंग पावर जो है, जब इमेज डिस्टेंस टू डिस्टेंस विजन पे बनती है, तो दैट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, दैट इज VO/UO इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई लेंस, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, सो दैट इज 1 + D/FE। तो यहाँ VO की वैल्यू थी 10, UO निकला था हमारा 2.5, और ये 1 + D की वैल्यू थी 25, और FE की वैल्यू थी 6.25, तो ये हो गया हमारा 10/2.5 इंटू ये हो गया 4, तो यहाँ पर आ गया 5, so that is equal to 50 divided by 2.5, that is 500 divided by 25, so that is equal to 20। तो इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो 20 आ जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, जब डिस्टेंस इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सो M equals to मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस। सो ऑब्जेक्टिव लेंस की वह है VO/UO, और ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, इसलिए 1 + D/FE होता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मिला के कॉम्प्लेक्स सीधा हो जाता है ये। तो VO की वैल्यू 10 थी, तो 10 बाई, और UO था 2.5, तो 10/2.5 इंटू 1 + D की वैल्यू 25 है, यहाँ 6.25 है,
इसका ये 4 टाइम्स है, तो दिस विल बी 1 + 4, सो दैट इज 10/2.5 into 5, and this 50/2.5, so that is your 500/25, that is 20. अब सेकेंड केस में when image is formed at infinity, so the magnifying power is VO/UO into it is D/FE. अब इस समय जो VO था that was 8.75 और UO हमारा निकला था 2.59 और D है हमारा 25 और UE है हमारा 6.25, तो ये तो सीधा 4 टाइम्स आ ही जाएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 and 30, 4 8 जा 32 and 35 and divided by 259, इसके दोनों डेसिमल हमने हटा दिए तो वो इतना आ जाएगा। ये डिवाइड करें तो दैट कम्स टू बी 13.5, द मैग्निफिकेशन 3500 डिवाइडेड बाय 25, इसको 26 ही मान के चलेंगे तो 26 से एक बार जाएगा, फिर उसके बाद आप डिवाइड करें तो ये करीब 13.5 आएगा। सो एक बार फिर से देख लीजिए ऊपर से, इसका मैग्निफिकेशन हम देखें VO/UO इट इज 1 + D/FE, तो ये VO की वैल्यू थी 10, ये था 2.5 इंटू 1 + 25 डिवाइड बाय 6.25, दैट इज इक्वल टू 4, तो 5 आ जाएगा, 10/2.5 इंटू 5 हो जाएगा, सो 50/2.5, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 525, दैट इज 20 आएगा। और बी पार्ट में जब उसने कहा कि इमेज एट इन्फिनिटी है तो फॉर्मूला ये, लेकिन ये हट जाएगा, D/FE रह जाएगा केवल। और इस समय VO की वैल्यू जो थी वो 8.75 थी, अगर आप देखेंगे पीछे हमने जो कैलकुलेट किया, और UO की वैल्यू थी 2.59 इंटू ये 25 डिवाइडेड बाय 6.5, ये 4 आ ही जाएगा कट कर, तो ये 4 से इसको अगर दोनों के डेसिमल अगर हम बना दें और इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 and 30, 4 8 जा 32 and 3 35, तो 3500 डिवाइडेड बाय 2259, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो दैट कम्स टू बी 13.5।